Good morning, class 11th once again, and today we are going to discuss about the last points of this chapter, and in this way the chapter hydrocarbon will be over. Clear? I will be also give the some brief information about the next chapter, chapter number 14, some environmental chemistry. So first I am just going to discuss about the last points of this chapter, and that is called the directive influence of group. What is the directive influence of a group? So there are a certain group which have a tendency to decide the position of an incoming group in a benzene ring. Clear? This tendency is called the directive influence. What do you mean by that? If a benzene ring is there, and if in a benzene ring one group is already present here like A, so the tendency of a group A to attach or to give the position to the incoming group B in a benzene ring at its ortho, meta or para position is called its directive influence. Clear? यानी अब A डिसाइड करेगा कि जो आने वाला जो ग्रुप B है where it will be going to add, either it will be add on this two ortho position in its meta position or its para position. You are knowing the adjacent position is called the ortho, alternate meta and opposite para position. अगर इस ग्रुप ने इस इनकमिंग ग्रुप को अपने ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करा दिया तो फिर ये ऑर्थो डायरेक्टिव हो जाएगा. अगर ये इनकमिंग ग्रुप को इसने मेटा पे अटैच कराया तो मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा. इफ इट विल बी अटैच्ड ऑन द पैरा पोजीशन देन द पैरा डायरेक्टिव हो जाएगा. तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस समझ में आया. It is a tendency of a group or atoms which is present on a benzene ring to decide the next incoming group in the position of a next incoming group in a benzene ring is called its directive influence. Basically, two types of directive influence is there. How many? Two types of directive influence is there. First is called the orthopara directive. On the basis of a directive influence, the groups are classified into two types: orthopara directive groups, and second will be मेटा. यानी जो ऑर्थो पे भेजेगा वो पैरा पे भी भेजेगा भाई, हमेशा ध्यान रखिए बात का. क्लियर? एंड सेकंड वन इज द मेटा डायरेक्टिव. What is an orthopara directive groups? All the groups which have a tendency to shift the next incoming group at their ortho and para position in the benzene ring are called the orthodidactic groups. Orthopara groups. What is the metadirectic groups? कि all the groups. Just see one एक example से देखिए. जैसे मान लो ये हमारा फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? फिनॉल है यहाँ पे पहले से, और हम यहाँ पे एक नाइट्रोजन आयन भेज रहे हैं, मतलब NO2 ग्रुप भेज रहे हैं. क्लियर? एक इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हैं. So this OH group is now decide where the nitrogen group will be attached, on its orthopara position or its meta position. So this OH group is basically the orthopara directive group, and that's why it will be decide the position of our next incoming group on its ortho position as well as the para position. Means it will form the phenol on a nitration, it will form the orthonitrophenol or para-nitrophenol, because it is the ortho-para directive groups, and that's why it will be decide the position of that next incoming group at their ortho and para position. Getting my points? उसी तरह से मेटा डायरेक्टिव क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दिस बेंजोइक एसिड इज देयर, and in this benzoic acid the same nitro group is coming, NO2 nitrogen ion is coming, then it will be decided its position to attach on its meta position. So the tendency of this COS group to direct the incoming group and its meta position is called its direct meta directive nature. Clear? Basically कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं जो ऑर्थोपैरा होते हैं? So ऑर्थोपैरा ग्रुप्स आर OH group, OR का मतलब क्या हो गया? एल्कोक्सी ग्रुप, दिस ग्रुप, एल्किल ग्रुप, NH2 group, NHR group,
NR2 ग्रुप और क्या हो जाएगा COR ग्रुप, ये हो गया कोई ग्रुप CHO, हाँ CHO ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, यस लगा है ना, C के बगल में डबल बॉन्ड से होगा बगल में एच लगा, नहीं CHO नहीं होगा इसका पास। COR ग्रुप हो गया, बुक में देख लो कुछ और पॉइंट दिए होंगे, NH2 दिस OH OR R, एक हैलोजन बचा हुआ है, हैलोजन ग्रुप, दिस हैलाइड PPC। हाँ बुक में बात ध्यान देना, बहुत ही गलत चीज दी हुई है, एक ग्रुप दिया हुआ है COOR, दिस COOR is a meta directed group, not the ortho para directed group. COR is a ortho para directed group, but COR is a meta directed group, don't forget, clear? There are some group which will be show the meta directed nature, एक तो हमने एग्जांपल में दे दिया COOH, COOR, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एक कीटोन भी तो नहीं होगा ना उसमें, तो कीटोनिक ग्रुप जैसा बिहेव करेगा, एंड कीटोन इज आल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, सॉरी मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, कीटोन तो मेटा डायरेक्टिव में आना चाहिए भाई, तो पूरा ग्रुप ही नहीं होगा इसमें, गड़बड़ है ये ग्रुप होगा नहीं यहाँ पे, ये कीटोन ऑर्थो पैरा में आता है, सॉरी मेटा में आएगा, ये मेटा होगा, ठीक है, मेटा में आएगा अपना नाइट्रो ग्रुप, NO2, साइनाइड ग्रुप, हाँ यहाँ पे आइसोसाइनाइड आ सकता है, NC is the ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, बट Cl is the मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, क्लियर? और भी कुछ ग्रुप देखे, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ, कुछ और ग्रुप मुझे मिल जाए मैं लिख देता हूँ, NO2, इतना ही ग्रुप, एक और दिया हुआ ग्रुप इसमें, वो दिया हुआ है SO3H ग्रुप। सो इतने जो ग्रुप हैं ये सब में सब क्या होते हैं, ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, साइनाइड एंड सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ऑल दीज ग्रुप्स आर द मेटा डायरेक्टिव ग्रुप्स। अल्कोहल, एल्कोक्साइड, एल्किल, एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, आइसोसाइनाइड एंड हैलोजन, ऑल दे आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। क्लियर? वेल क्लियर? एक बार एग्जांपल पूरा देख लीजिए भाई, ठीक है, ये एग्जांपल से पूरा का पूरा आपका, इतने ग्रुप्स हैं इसमें, और ये इतने ग्रुप हैं जो मेटा डायरेक्टिव होते हैं, ठीक है, याद कर लीजिए इसको, और याद नहीं कर पाएंगे तो आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, लेकिन बट डोंट से विद एवरीवन, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। ओके, सो यहां तक ठीक है। एक और पॉइंट्स आता है इसमें, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो दिस ग्रुप व्हिच आर अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, दे कैन एक्ट एज अ activating groups as well as deactivating groups to the benzene for the next electrophilic substitution reaction. So जितने भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, all the ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव groups are activating groups. They are activating groups because they have a tendency to activate the benzene ring for the further electrophilic substitution reaction at the ortho and para position. While these meta directive groups are called the deactivating groups because they will deactivate the benzene ring, because they will be deactivate the benzene ring for the further electrophilic substitution reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको आपको जानना था। एक और चीज इसमें आएगी, और वो ये है कि this halogen is only one ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप which is the डीएक्टिवेटिंग नेचर, यानी हाइड्रोजन जो है वो अपना डीएक्टिवेटिंग होता है, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। बाकी सब कुछ आपको वैसे ही चलेगा जैसे हमारा नॉर्मल चल रहा था। क्लियर? यहां तक में कोई दिक्कत है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में? वेल क्लियर, ठीक है। अच्छा, आपको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा था कि सर कौन ऑर्थो पैरा होगा, कौन मेटा होगा। देखो करना क्या होता है इसमें कि अगर हम बेंजीन रिंग को देखें, बेंजीन द ग्रुप, यहां देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, the atom which will be attached with the benzene ring, हमको इसको देखना होगा, टारगेट इसको करना होगा। अब देखिए, if this atom is attached with the more electronegative atom, यहां देखिए कार्बन लगा हुआ है, and carbon is attached with the oxygen is more electronegative, so जब एटम्स कार्बन के बगल में उससे ज्यादा
इलेक्ट्रोनेगेटिव पैटर्न लगा होगा तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ऐसा होगा, जब ये जो लगा हुआ ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी खींचने लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बगल का ग्रुप उससे ज्यादा पावरफुल था। सो सच टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर ऑलवेज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि देखिए एक्टिव ग्रुप लिखिए यार, एक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए ना। सो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, देखिए बेंजीन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहा है, एंड दिस इज द मेटा डायरेक्टिव इन नेचर आल्सो। बट जस्ट सी हियर, ऑल द ग्रुप्स विद द ग्रुप व्हिच इज अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग हैविंग अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए बगल में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन से कम है। सो ऑक्सीजन विल बी अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, और जब इसके बाद ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा बेंजीन को दे देगा। सब ये बेंजीन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो फिर ये एक्टिवेटिंग की तरह से बिहेव करेगा, एंड इट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप्स। हमेशा ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब कहेंगे सर हाइड्रोजन में क्या प्रॉब्लम हो रही है फिर? तो हाइड्रोजन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाइड्रोजन के पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से बेंजीन को अपना डोनेट करता है, और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। when the electron density will be increased at the ortho and para position, the it will react as a ortho para dialectic group. But what problem in the why it is a deactivated? So because the electronegativity of hydrogen is already very high in compared to the carbon. So अगर हाइड्रोजन कार्बन से लगा रहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है ऑर्थो पैरा के लिए, लेकिन बेंजीन को हमेशा अनस्टेबल करता रहेगा, क्योंकि कहेगा मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहा, इलेक्ट्रॉन वापस कर भाई। जब वो कहेगा कि एक्टिवेट हो रहा है, हम किसी सिलेक्ट कहेगा वापस कर दे, यानी ये डीएक्टिवेटिंग है। हाइड्रोजन डीएक्टिवेट करना बेंजीन को बार बार, लेकिन अगर गलती से कहीं रिएक्ट होगा भी तो ऑर्थो पैरा पे ही होगा, क्योंकि डीएक्टिवेट करने के साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पे ही बढ़ा रहा है। सो ऑल दिस ग्रुप दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर द एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। ऑल दिस ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिव, they will be decrease the electron density at the ortho and para position, and thus the incoming electron will be attacked on the meta position only, and that's why they are called the meta directive groups. Getting? यानी ये मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते नहीं है, ऑर्थो और पैरा के पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतना कम कर देते हैं कि अब ग्रुप जो आएगा वो ऑर्थो पैरा पे अटैक ही नहीं कर सकता। कहां अटैक करेगा? मेटा पे, क्योंकि भाई आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्थिति है, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पे वो अटैक करेगा। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां होगी? जो ग्रुप डिसाइड करेगा, क्योंकि दिस मेटा डायरेक्टिव ग्रुप विल बी डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो डेंसिटी ज्यादा कहां बची? सिर्फ मेटा पे। सो ये जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है वो क्या करेंगे? मेटा पे अटैक कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और ये क्या करेंगे? ये ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे सारे ग्रुप, तो क्या होगा? जो एक्टिवेट जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आराम से अटैक करके प्रोडक्ट बनेगा। सो इन दिस वे द चैप्टर इज कंप्लीटेड। एक छोटा सा पॉइंट और भी दिया है, मैं जब आपके बुक से दिखा दूं। एक कार्सिनोजेनेसी है, यानी टॉक्सिसिटी ऑफ द बेंजीन। तो कुछ जो पॉली ग्रुप्स होते हैं बेंजीन के, जिसमें 4, 3, 2 इस तरह से बेंजीन आपस में फ्यूज होते हैं, ये जनरली कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अगर हमारे खाने में है तो हमको कैंसर कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये साथ साथ टॉक्सिक होते हैं, यानी कि डायरेक्ट खाने के बाद कई लोगों की डेथ भी हो सकती है इससे। ठीक है, इसमें जो खासकर होता है 1,2 बेंजीन एंथ्रासिन, बेंजेंथ्रासिन होता है, फिर 1,2 बेंजपायरीन होता है। इस तरह से कई बहुत सारे कंपाउंड्स, थोड़ा सा आपको बुक में देखना पड़ेगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल आप देख लेंगे। हाँ, मैंने बुक क्यों उठाया था, बेसिकली चैप्टर खत्म हो चुका है। ये देखिए इसमें एक छोटा सा टर्म्स दिया हुआ है, इसको आप बिल्कुल देखेंगे नहीं। ये है क्या कहते हैं इसको, सिंथेटिक पेट्रोल है, क्रैकिंग है, नॉकिंग है, ऑक्टेन नंबर है, ये सब आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। The last chapter, why I have taken the book, this is the environmental chemistry. This environmental chemistry is the self-study chapter, because I already have discussed in the environmental chemistry in the class 9. इसमें बेसिकली आपको पढ़ना क्या है? फर्स्ट इज द स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। आपने देखा होगा दिल्ली में ठंडियों में बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाता है, इतनी फॉग गिर जाती है और साथ साथ जहरीली होती है कि उस फॉग में आप, जैसे गोरखपुर में जो फॉग गिरता है उसमें स्मॉग नहीं होता है, इसलिए आप गाड़ी आराम चला लेते हैं, लेकिन ये आंखों में लगेगा स्मॉग। तो धुआं भी है और प्लस फॉग भी है, स्मॉग दिखाई भी नहीं देगा और जहरीला है। सो दिस इज द स्मॉग। पहली बार ये लंदन में आया था, इसलिए इसे लंदन स्मॉग के नाम से जाना गया। बाद में बहुत सारी जगह पे आने लगा, बड़ी बड़ी जो
सिटीज है वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या है? इन द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री द फर्स्ट पॉइंट व्हिच वी विल बी डिस्कस दैट इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। व्हाट आर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स? फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। फॉर डिफिनेशन देख लीजिएगा। फिर पढ़ना हमको एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, गैसियस पॉल्यूटेंट्स क्या है, कैसे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2S गैस, ओजोन, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सब के सब आपके पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके बाद आपको पढ़ना है सेम वही एसिड रेन। यू आर वेल फैमिलियर विद द एसिड रेन इन द क्लास 10th and 9th you have discussed ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, क्लियर, एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सो ये सब कुछ पढ़ना है। एक लास्ट पॉइंट होता है इसमें ग्रीन केमिस्ट्री। व्हाट इज द ग्रीन केमिस्ट्री? सो ग्रीन केमिस्ट्री इज द strategy of designing the chemical products and the processes in such a way that it will be not a very harmful for our environment is called the green chemistry. Clear? सो हम पूरे जो जितने भी एक ऐसी स्ट्रेटजी हम बना के इसमें काम करते हैं जिससे हमारा जो केमिकल निकल रहा है या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करे, लेस हार्म पहुंचावे, ठीक है, और यूजफुल हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड द ग्रीन केमिस्ट्री। और इस तरह से चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो चैप्टर नंबर 14 विल बी सेल्फ स्टडी, यू विल बी कंप्लीट इन दिस वे। द ऑर्गेनिक इज कंप्लीटेड। चैप्टर नंबर 12, 13 and 14 we have completed now after that from the next day I will be start the inorganic. In the inorganic I will be start the hydrogen. After hydrogen S block, P block, और फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4, 5, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय क्लास।